Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today we see our next topic of quality control and inspection, that is quality function deployment. In previous lecture, we see introduction to inspection. The learning outcome of today's lecture are students are able to know about quality function deployment. The various program outcomes that we achieve in today's lecture are PO1, PO2, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome is PSO2. Now, quality function deployment was first developed in Japan in the Kobe shipyard in 1970. Today, more than 10,000 companies in America and West Europe and in India also are utilizing the technique of QFD, that is quality function deployment. Automotive industry, the fastest in the implementation of QFD. It is the planning tool used to fulfill the customer expectation. A disciplined approach to product design, engineering and production and provides in-depth evaluation of the product. मतलब क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट से क्या कर सकते हो आप डिसिप्लिन अप्रोच अप्लाई कर सकते हो इन प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड इन डेप्थ इवैल्यूएशन ऑफ अ प्रोडक्ट using KFD for new product development always involves a cross-functional team with the skills necessary for designing the product, writing engineering specification, purchasing material, planning the tooling and production work. मतलब QFD से जो आप न्यू प्रोडक्ट में डेवलपमेंट कर रहे हो वहां पे क्या रहेंगे हमेशा एक क्रॉस फंक्शनल टीम रहेंगी विद द स्किल्स नेसेसरी मतलब वो टीम में कौन से स्किल जो रिक्वायर्ड रहेंगे वो टीम में रहेंगे फॉर डिजाइनिंग द प्रोडक्ट राइटिंग इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन परचेसिंग मटेरियल कौन सा मटेरियल परचेस करना चाहिए प्लानिंग द टूलिंग एंड द प्रोडक्शन वर्क मतलब कौन सा टूलिंग रहना चाहिए हाउ द प्रोडक्शन वर्क विल बी कैरिड आउट The effort of this team eliminate rework and typically reduce development time by as much as 50%. तो ये जो टीम है ओके ये टीम के वजह से क्या होगा जो आप प्रोडक्ट में रिवर्क करते हो बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट वो क्या होगा यहाँ पे इलिमिनेट होगा typically reduce development time by as much as 50%. मतलब जो प्रोडक्ट में डेवलपमेंट रहता है तो ऑलरेडी वो टीम क्या करेंगे मार्केट सर्वे के हिसाब से या फिर कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें डेवलपमेंट करेंगे मतलब 50% डेवलपमेंट उसमें क्या हो जाएगा ऑलरेडी हो जाएंगे ओके दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्वालिटी फंक्शन ऑफ डिप्लॉयमेंट QFD helps identify new quality technology and job function to carry out the operation. तो QFD किसमें हेल्प करती है जो न्यू क्वालिटी टेक्नोलॉजी और जॉब फंक्शन टू कैरी आउट द ऑपरेशन ओके तो इस फेनोमेनन में QFD क्या कर रही है आपको हेल्प कर रही है This tool provides a historic reference to enhance the future technology and prevent design engineering. सपोज आपने कभी कोई अभी एक कार मार्केट में है तो मार्केट में जो अवेलेबल कार है उसको यानी ये क्या हो गई हिस्टोरिक कार हो गई आप अगर फ्यूचर में कार बनाने चाहोगे तो इसको रेफरेंस में लेके QFD की टीम क्या करेंगी अभी फ्यूचर में जो डिजाइन आएगा वो डिजाइन करेंगे बाय रिमूविंग द एरर्स इन द present scenario. QFD is a set of graphically oriented planning material that are used as the basic for decision affecting any phase of the product development cycle. मतलब QFD से क्या कर सकते हो आप ग्राफिकली ओरिएंटेड प्लानिंग मैट्रिक्स बना सकते हो ग्राफिकली ओरिएंटेड मतलब
कौन से वहां पे फैक्टर आ रहे हैं, उसका कितना इफेक्ट आ रहा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन से। ओके, तो इस तरीके से एक मैट्रिक्स बना के आप प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द QFD। QFD results are measured based on the number, design and engineering changes, time to market and cost and quality। मतलब QFD का रिजल्ट जो है वो मेजर कैसे करेंगे आप, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डिजाइन, इंजीनियरिंग में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बेसिस पे, टाइम टू मार्केट एंड कॉस्ट एंड क्वालिटी। क्वालिटी क्या है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ द QFD एंड उसकी कॉस्ट क्या है। ओके, so on this factor you are measure the result of the QFD, quality function deployment। QFD enables the design phase to concentrate on the customer requirement, spending less time on redesign and modification। मतलब QFD से आप जो डिजाइन बनाने वाले हो वो डिजाइन किस पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, ओनली ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट। ओके, बाय स्पेंडिंग द लेस टाइम ऑन रीडिजाइन एंड द मॉडिफिकेशन। मतलब विद द, अगर आप QFD से रीडिजाइन करोगे या डिजाइन करोगे तो आपको क्या जाएगा, उसमें लेस टाइम जाएगा ऑन रीडिजाइन एंड द मॉडिफिकेशन इन द प्रोडक्ट। द QFD टिप, a new product, improving an existing product, team contains, मतलब जो QFD की टीम आप बना रहे हो किसके लिए रहेंगे, मेनली न्यू प्रोडक्ट एंड इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। टीम कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर फ्रॉम मार्केटिंग, डिजाइन, क्वालिटी, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन। मतलब ये सभी डिपार्टमेंट से क्या रहेंगे, QFD के टीम में मेंबर्स रहेंगे। ओके, जो क्या करेंगे, QFD की टीम बनाएंगे और आपका जो प्रोडक्ट है न्यू प्रोडक्ट के लिए डिजाइन करेंगे और जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें भी क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट के लिए जो कुछ लग रहा है वो वहां पे सजेस्ट करेंगे। टीम मीटिंग, a project manager and team member need to commit a significant amount of time, especially in the every stages। मतलब जब टीम मीटिंग होती है QFD की तो यहाँ पे कौन से मेंबर आएंगे, मेनली द प्रोजेक्ट मैनेजर, ओके, एंड टीम मेंबर्स ऑफ द कमिटी। और इनका पूरा टाइम लेके वहां पे क्या होगा, कुछ डिसीजन होगा फॉर द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये कब होता है, स्पेशली इन द अर्ली स्टेजेस। जब आपकी QFD की टीम फॉर्म हो गई तो आपको क्या लेना है, मीटिंग लेना है प्रोजेक्ट मैनेजर को और सबको अपना अपना काम बताना है ताकि जो न्यू प्रोडक्ट है या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो जल्दी से जल्दी रीडिजाइन हो जाए। Priorities and scope of the project need to be clearly defined and told to all the departments with the organization so time can be budgeted appropriately। Okay, तो priorities and the scope of the project ये क्या करना चाहिए, क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, टोल्ड टू ऑल द डिपार्टमेंट। मतलब जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, आपका डिजाइन है, मार्केटिंग है, क्वालिटी है एंड प्रोडक्शन है, तो हर किसी को अपने प्रायोरिटीज एंड स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब वो डिपार्टमेंट का वो प्रोजेक्ट में स्कोप क्या है ये सभी पता रहना चाहिए। ओके, सो दैट जो आप प्रोडक्ट का डिजाइन करने वाले हो या फिर न्यू प्रोडक्ट का रीडिजाइन कर न्यू प्रोडक्ट का डिजाइन करने वाले हो या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का रीडिजाइन करने वाले हो, उसमें विथ टाइम आप रीडिजाइन या डिजाइन कर पाओगे। Duration of meeting vary depending on team members are coming from and what need to be accomplished। मतलब मीटिंग का ड्यूरेशन कैसे डिसाइड होगा कि आपके टीम मेंबर कहां से आ रहे हैं एंड व्हाट नीड टू बी अकम्प्लिश्ड। नाउ वी सी द बेनिफिट्स ऑफ QFD। कस्टमर ड्रिवन, मतलब QFD का फोकस कहां पे रहेगा, कस्टमर पे रहेगा।
कस्टमर की जो नीड रहेंगी उसी के हिसाब से क्या करेंगे, क्यूएफडी की टीम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे। रिड्यूस इम्प्लीमेंटेशन टाइम बिकॉज ऑफ द क्यूएफडी टीम, जो प्रोडक्ट में डेवलपमेंट होना चाहिए उसके हिसाब से जो प्रोसेस में डेवलपमेंट होना चाहिए, तो वो जो प्रोसेस में इम्प्लीमेंटेशन करने का समय क्या हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ द क्यूएफडी रिड्यूस हो रहा है। प्रमोट टीम वर्क इन द क्यूएफडी फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट, so many people are working together so that the it will promote the teamwork. Provide डॉक्यूमेंटेशन, मतलब क्यूएफडी से क्या पता चलेगा, हर एक डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट आएंगे। मतलब क्यूएफडी क्या प्रोवाइड करेगा, फॉर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इट विल प्रोवाइड द डॉक्यूमेंटेशन। द वॉइस ऑफ कस्टमर, क्यूएफडी जो बिगिन होता है विथ मार्केटिंग टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली द कस्टमर वांट फ्रॉम अ प्रोडक्ट। मतलब मार्केटिंग टीम क्या करेंगे, मार्केट सर्वे करेंगे और मार्केट सर्वे से उसको पता चलेगा कि जो कस्टमर है उसको प्रोडक्ट क्या चाहिए या फिर प्रोडक्ट में कौन से फंक्शन चाहिए। सोर्सेस फॉर डिटरमाइनिंग द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, फोकस ग्रुप। ओके, जो ग्रुप है, जो आपका प्रोडक्ट है जहाँ पे यूज हो रहा है, जो जनरेशन में यूज हो रहा है, तो ग्रुप को आपको फोकस करना है, सर्वे करना है। देन कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स मतलब आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या फिर जो आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में अभी क्या कंप्लेंट्स आ रही है और आप उसको कैसे नलीफाई कर सकते हो। कंसल्टेंट, कंसल्टेंट के पास क्या रहता है, प्रोडक्ट के बारे में डाटा रहता है इन द मार्केट, तो कंसल्टेंट से वो डाटा लेना, उस पर एनालिसिस करना। स्टैंडर्ड, बाद में अभी जो मार्केट में आपके प्रोडक्ट अवेलेबल है और आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका स्टैंडर्ड क्या रहना चाहिए। देन फेडरल रेगुलेशन, फेडरल रेगुलेशन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन क्या रहना चाहिए। जैसे कोई आप एक ऑक्सीजन सिलेंडर अभी बना रहे हो, तो उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट ने या फिर लीगल जो रेगुलेशन प्रोवाइड किए हैं वो क्या रहने चाहिए, ये भी आपको स्टडी करना जरूरी है। बिकॉज each and every customer will see that rules and regulation that will provide by the government to use that product. Okay, so that is all the sources for determining the customer expectation. The QFD team must continuously ask what does the customer really want. Okay, मतलब कस्टमर को रियली क्या चाहिए। व्हाट आर द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन क्या है प्रोडक्ट से। आर द कस्टमर एक्सपेक्टेशन यूज टू ड्राइव द डिजाइन प्रोसेस, मतलब कस्टमर के जो एक्सपेक्टेशन है उससे आप अपनी डिजाइन प्रोसेस चला सकते हो। व्हाट कैन द डिजाइन टीम डू टू अचीव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब डिजाइन टीम ने क्या करना चाहिए ताकि वो क्या कर पाए, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन अचीव कर पाए। तो क्यूएफडी की टीम क्या करेंगी, हमेशा ये क्वेश्चन पूछते ही रहेंगी, सो दैट द इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट विल बी टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मतलब क्यूएफडी का फोकस क्या रहेगा, हमेशा कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नाउ कलेक्टिंग द डाटा, अभी अब मुझे डाटा कलेक्ट करना है, तो डाटा कैसे रहना चाहिए, सोलिसिटेड, अनसोलिसिटेड, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ओके, तो सोलिसिटेड मतलब क्या रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। अनसोलिसिटेड मतलब अनऑर्गेनाइज डाटा रहेगा। क्वांटिटेटिव मतलब जिसको आप मेजर कर पाओगे और क्वालिटेटिव मतलब जिसका क्वालिटी आप चेक कर पाओगे। Okay, that is the difference between qualitative and the quantitative that I already tell in the last video. What is the meaning of quantitative and the qualitative? स्ट्रक्चर, मतलब जो डाटा आप कलेक्ट करने वाले वो स्ट्रक्चर रहना चाहिए। मतलब कोई भी अगर उसको केएफडी के टीम का मेंबर रीड कर रहा है तो वो उसको रीड करते आना चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। रैंडम, रैंडम मतलब वो भी ऑर्गेनाइज टाइप रहना चाहिए। रैंडम मतलब प्रोडक्ट के मार्केटिंग के बारे में एक हो गया, कलर के बारे में एक हो गया। ओके, तो इस तरीके से वो रैंडम डाटा रहना चाहिए। ऑर्गेनाइज द डाटा, बाद में क्या करना है आपको, सिलेक्ट करने के बाद वो डाटा को ऑर्गेनाइज करना है।
The affinity diagram gathers a large amount of data and organizes the data into groups based on their natural interrelationship. The affinity diagram is ideally suited for most QFD applications. Other data organizers include interrelationship diagram, tree diagram, cause and effect diagram that we already see in the last video. So this is the affinity diagram. तो affinity diagram में क्या कर रहे हो आप? एग्रेसिव प्राइसिंग पॉलिसी क्या है? ओके, तो इससे जो रिलेटेड है ये सभी डाटा यहाँ पे आ गए. देन स्ट्रेटेजिक डिस्क्रिप्टर्स क्या है? ओके, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करेंगे आप, तो उससे रिलेटेड जो फैक्टर है वो यहाँ पे आ गए. फ्लेक्सिबल सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रहे हो आप? रिएक्टिव, उसका रिएक्शन क्या आ रहा है, मिनिमम ओवरहेड क्या आ रहे हैं, तो ये सभी डाटा क्या हो गया? ओके, आपने ऑर्गेनाइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ द एफिनिटी डायग्राम. मतलब ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द क्यूएफडी टीम कैन इजीली रीड दिस, ओके, this data and organize this data, and you can read this data and you can implement this data to make a product design or to make improvement in the product, and you can easily implement this data for the product development. So that is all about this affinity diagram. Matrix and tables. Matrix is a tool which lies at the heart of many QFD methods. मतलब क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट जो मेथड यूज कर रही है फॉर ऑर्गेनाइजिंग द डाटा और फॉर कैलकुलेटिंग द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, ये मैट्रिक्स टूल वो यूज कर रही है. By comparing two lists of atoms using a rectangular grid of cells, it can be used to document a team perception of the interrelationship that exists. मतलब टू लिस्ट ऑफ आइटम मतलब क्या हो गया? क्वालिटी डिमांडेड क्या है और आपके क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका रिलेशनशिप क्या है. ओके, तो ये आपको जो ग्रिड ऑफ सेल्स में क्या करेंगे आप, इसका नंबर ऑफ वैल्यू मतलब डिमांडेड क्वालिटी, किसी ने कलर मंगा है और आपके क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर कलर है तो उसका ग्रेड क्या रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिमांडेड क्वालिटी बाय द कस्टमर. तो आप ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू डिमांड करेंगे 1 से लेकर अगर 10 है तो मैं यहाँ पे अगर 10 देता हूँ, मतलब कस्टमर को कलर अच्छा चाहिए. ओके, उसका ब्राइटनेस अच्छा चाहिए. और क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर मैंने यहाँ पे कलर लिखा है, ओके, तो कलर को मैं कितना नंबर दूंगा यहाँ पे? 10. That is the interrelationship of the demanded quality and the quality characteristics of the product. Now in prioritization matrix, the relative importance of atom in the list and the strength of interrelationship are given in numerical weightage. तो प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स मतलब कौन सा होगा आपका ये? ओके, जहाँ पे क्या करेंगे आप, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, डिमांडेड क्वालिटी एंड क्वालिटी प्लान, इसका जो रिलेशनशिप रहेगा इसको आप यहाँ पे वेटेज देंगे. मतलब जैसे मैंने आपको अभी बताया था, डिमांडेड क्वालिटी ऑफ द कस्टमर इज अ व्हाइट कलर, बाद में आपका क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा यहाँ पे कलर, तो इसको कितना वेटेज देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मार्केट सर्वे, तो वो यहाँ पे रहेगा. तो ओवरऑल प्रायोरिटी ऑफ द एटम्स ऑफ वन लिस्ट अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशनशिप विद अनदर लिस्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज शोन इन फिगर. मतलब डिमांडेड क्वालिटी, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और आपका क्वालिटी प्लान, इसका रिलेशनशिप क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा, इसका वेटेज यहाँ पे रहेगा. ओके, so that is all about the matrix and the table. Now this is the example for matrix and table. Okay, तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, जो रेडियो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, इंडस्ट्री के जो टेक्निकल फैक्टर क्या है, कॉम्पिटिटर ए बी सी, देन प्रोडक्ट, प्रपोज प्रोडक्ट, इम्प्रूवमेंट फैक्टर, देन सेल्स पॉइंट, एब्सोल्यूट वेट, रिलेटिव वेट, ये सभी फैक्टर यहाँ पे क्या किए, कैलकुलेट किए और इसको एक वेटेज दिया है. देन बाय स्टडिंग ऑल दिस फैक्टर, दैट इज कस्टमर रिक्वायरमेंट, कॉम्पिटिटर स्टैंडर्ड,
एंड कंपनी स्टैंडर्ड, ये सभी को स्टडी करके यहाँ पे रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल द फैक्टर्स विल बी कैलकुलेटेड. ओके, so that is the importance of a matrix and tables, okay, with the help of which we can compare the customer requirement with the competitor specification, and we design our standard specification so that the customer will be satisfied on these all the factors. जब कस्टमर कोई भी अगर रेडियो खरीदने जाएगा तो वो क्या करेगा, कॉम्पिटिटर ए के प्रोडक्ट को देखेगा, बी को प्रोडक्ट को देखेगा और सी के प्रोडक्ट को देखेगा, एंड दे विल select the best product that will suited to their requirement. So that these matrix and tables is a very useful in the quality function and deployment to design the product according to the customer requirement. Now the exterior wall, मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका जो एक्सटीरियर वॉल रहेगा ये रहेगा कस्टमर रिक्वायरमेंट. लेफ्ट साइड जो रहेगा दैट इज द वॉइस ऑफ कस्टमर, मतलब डिमांडेड क्वालिटी ऑफ द कस्टमर. राइट साइड जो रहेगा प्रायोरिटाइज कस्टमर रिक्वायरमेंट. ये साइड में क्या रहेगा, जो कस्टमर को प्रायोरिटी पे रिक्वायरमेंट है. सीलिंग और सेकंड फ्लोर टेक्निकल डिस्क्रिप्टर्स, मतलब क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, engineering characteristics, design constraint and parameters. Interior walls, relationship between the customer requirement and technical descriptor, मतलब ये जो डिमांडेड है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है और इसका टेक्निकल डिस्क्रिप्टर क्या है, मतलब टेक्निकली कौन से आपको देना चाहिए. ओके, या फिर टेक्निकली जो ग्रेड रहेंगे वो क्या रहेंगे. ओके, इसका रिलेशनशिप रहेगा यहाँ पे इंटीरियर वॉल्स में. रूफ, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द टेक्निकल डिस्क्रिप्टर, मतलब ये जो रूफ है इसमें क्या रहेगा, इंटर रिलेशनशिप ऑफ द टेक्निकल डिस्क्रिप्टर. फाउंडेशन, प्रायोरिटाइज टेक्निकल डिस्क्रिप्टर, मतलब प्रायोरिटी पे कौन सी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रहने चाहिए वो कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे फाउंडेशन में. The unit outcome achieved in today's lecture are: interpret the data obtained from the given quality control process. Today we see the introduction to quality function deployment. The various program outcomes that we achieved in today's lecture are PO1, PO2, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome is PSO2. Describe quality function deployment. That is the question asked in the MSBT exam. तो आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ब्रीफली देना है, एकदम डिटेल में नहीं देना है, फॉर द 4 मार्क्स और तो 6 मार्क्स. नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट 5th यूनिट and tomorrow there will be a test on this 5th unit. Thanks. For any query, contact to this number.